Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. You know, when David and all his people, they brought the Ark of Covenant to the Jerusalem. जब इस्राएली लोग वो परमेश्वर का जो David and all his people, दाऊद और सारे लोग when they brought the Ark of Covenant to the Jerusalem, जब वो वाचा के संदूक को यरूशलेम में लेकर आए, when they started from that place, जब उन्होंने उस जगह से यात्रा आरंभ की, they were all rejoicing, they were all blowing the trumpet, they were all singing and dancing. और वो नरसिंगा बजा रहे थे, वो नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद मना रहे थे। In the starting, they were all doing all these things. और शुरुआत में वो ये सब कुछ कर रहे थे। But when that ark came to the city of David, लेकिन जब वो वाचा का संदूक दाऊद के नगर में पहुंचा, we read in the word of God, David was all alone, who was dancing, who was jumping, who was singing and rejoicing. और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उस समय में उस स्थान में केवल दाऊद ही वो रह गया था जो वो नाच रहा था, गा रहा था, परमेश्वर के सम्मुख में आनंद मना रहा था। So when we begin this session of anointing, all they shout, all they clap their hand, but after some time everything dies down and only few they are left with that anointing and rejoicing. और जैसे ही हम आत्मा में भरने के भाग को आरंभ करते हैं, उस समय सभी लोग बहुत आवाज करके आत्मा में भरते हैं, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है, सब ठंडे पड़ जाते हैं और कुछ ही लोग आत्मा में भरते हैं। After only few 2-3 minutes everything dies down and only few they are left with that anointing and rejoicing, that true anointing and rejoicing. और वो 2 या 3 मिनट के बाद ही बहुत लोग ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ ही लोग उसी आत्मा में दिखाई देते हैं। You know why it is so? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों That's है? what God said. That's chosen ones. यही परमेश्वर ने कहा, यही चुने हुए लोग That's हैं। the chosen one, chosen people of God. वही वो चुने हुए लोग हैं। In the church also God has chosen that group for Himself. और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में ही एक चुने हुए झुंड को That अपने they रखा should है, worship God in spirit and truth. ताकि वो परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई में आराधना कर God सके। doesn't desire everyone's worship because you cannot worship God. परमेश्वर सबके आराधना को आग्रह नहीं करता, क्योंकि हम सब आराधना But there कर are नहीं few सकते। who comes to the presence of God in order to please Him through their worship. और कुछ ही लोग हैं जो परमेश्वर के सम्मुख में इसलिए आते हैं कि अपनी आराधना के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। That's what the Spirit of God is exhorting us. और यही परमेश्वर की आत्मा ने हमें भी प्रोत्साहित किया। In which group you are found? आप किस झुंड में दिखाई We देते need to be हैं? found in that chosen group of God. हमें उस झुंड में जो परमेश्वर द्वारा चुना हुआ है दिखाई All देना है। other groups, they will not be caught up in the और rapture. बाकी जितने भी झुंड हैं वो आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे। Language biased group will not be caught up in the rapture. जो भाषा द्वारा अपने आप को अलग करते हैं वो आगमन में नहीं दिखाई दिए जाएंगे। Caste biased people, they will not be raptured. जो जाति द्वारा अपने आप को भेद करते हैं वो आगमन में नहीं दिखाई दिए Status जाएंगे। biased people, they will not be raptured. जो अपने स्तर के अनुसार अपने आप को अलग करते हैं वो आगमन में नहीं Only दिखाई those who are देंगे। found in that chosen group of God, they will be raptured. केवल परमेश्वर के चुने हुए झुंड में जो दिखाई देते हैं वो आगमन में उठा लिए Beloveds, जाएंगे। let's all introspect our life in which group you are found these days. प्रिय लोगों, आइए हम सब अपने जीवन का आत्मविश्लेषण करें और ये देखें कि किस झुंड में हम दिखाई देते We हैं। should only worship God. हम केवल परमेश्वर की आराधना That's what करें। the word of God says. God says, come out of them, come out of them. वही परमेश्वर का वचन कहता है, उनके बीच में से निकल आओ। In 2 Corinthians 6 chapter 17th verse, God says, come out of them. दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के 17वें वचन में परमेश्वर कहता है, उस झुंड के बीच में से If you निकल are आओ। found in such a group in the church, God is saying, come out of them. यदि आप ऐसे झुंड में दिखाई देते हैं तो परमेश्वर कहता है, उनके बीच में से निकल आओ। Then I will accept you. तब मैं तुम्हें ग्रहण Then करूंगा। you shall be my sons and तब daughters. तुम मेरे पुत्र पुत्रियां I shall ठहरोगे। be father unto you. मैं तुम्हारा पिता हूँ। I will be your God, God says. मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा, परमेश्वर Dear ones, कहता है। let's all desire and put efforts to come into that chosen group of God. तो ये लोगों, आइए हम सब उस चुने हुए झुंड में आने के लिए परिश्रम करें। For God to help us to come into that group which belongs to God. Let's all praise God. परमेश्वर उस झुंड में आने के लिए हमें सहायता करे, इसलिए आइए हम सब तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. When David was worshipping God, he did not bother about others what they were doing. जब दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था, वो ये इस बात की चिंता नहीं करता था कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। When he was dancing, he was not bothered about others' opinion and what they are thinking about him, even his own wife. वो जब परमेश्वर के सम्मुख में नाच रहा था, वो इस विषय में बिल्कुल चिंतित नहीं था कि दूसरे उसे देख के क्या सोचते होंगे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी का भी उसके
बारे में क्या विचार था, उसके बारे में भी उसने परवाह नहीं So की। let's not think about others what they are telling us. इसलिए दूसरों के बारे में चिंता ना करें कि वो आपके विषय में क्या And कहते one हैं। more thing, और एक और बात, Church of God, they must understand if someone is teaching you that you should not feel in the spirit much, you should not shout much, you should not scream, or you should not move from your place. This is wrong teaching. Don't incline your ears to that thing. और परमेश्वर की कलीसिया भी ये समझ ले, यदि कोई उनको ये सिखाता है कि परमेश्वर के सम्मुख में आप ज्यादा हिले नहीं या आवाज ना उठाएं, तो ये एक गलत वो संदेश है। कोई अगर आपको ये सिखा रहे हैं कि ज्यादा आत्मा में नहीं भरना, चिल्लाना नहीं, अपना जगह से हिलना नहीं, गलत शिक्षा है, इसको कान नहीं लगाना। प्रभु का आत्मा जैसे आपको चलाता है वैसे चलो, चाहे वो सेवक हो चाहे वो कोई विश्वासी हो। अगर आपको ये कोई सिखा रहा है चिल्लाना नहीं, ज्यादा आत्मा में भरना नहीं, कूदना नहीं, गलत है, किसी का नहीं सुनना। ऐसा आपको जैसे प्रभु का आत्मा करता है वैसा करो। किसी मनुष्य का बात सुन के प्रभु के आत्मा के साथ समझौता नहीं करना। ये गलत शिक्षा है, जिसने भी ये जो भी सिखा रहा है या बोल रहा है। तो we should not incline our ears to such teachings. इस प्रकार के सिखाने के लिए हम अपने कानों को ना दें। They are not filling in the spirit and they don't like others to fill in the spirit. वो खुद भी अभिषेक में भरते नहीं है और दूसरों को भी भरने के लिए So देते नहीं। please, dear ones, those who are all coming to the church, they have the Holy Spirit. Don't incline your ear to such teachings. इसलिए प्रिय लोगों, जो कोई भी परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं वो इस प्रकार की शिक्षा के लिए अपने कानों को ना दें। Let the Spirit of God have a full control over you. आपके ऊपर पवित्र आत्मा पूरी तरह से When you नियंत्रण fill in करने the दें। Spirit, give all to the Holy Spirit. जब आप आत्मा में भरते हैं पूरी रीति से पवित्र आत्मा के लिए Surrender समर्पण करें। all your body, soul, and spirit in the hands of in the Holy Spirit. Let the Spirit take control of you. अपने शरीर प्राण आत्मा को पूरी रीति से पवित्र आत्मा के लिए सौंप दे और पवित्र आत्मा आपको नियंत्रित Don't करने be दे। bothered about others' opinions. दूसरों के विचारों के विषय में चिंता न Don't think करें। about others they will say about this or what others will think about this. ये ना सोचे कि दूसरे क्या कहेंगे या वे क्या सोचेंगे। You are here to please God. आप यहाँ परमेश्वर को You are प्रसन्न here to करने के लिए worship हैं। God. आप यहाँ पे परमेश्वर की Don't be आराधना bothered करने about के लिए other हैं। people. इसलिए दूसरों की चिंता For ना God to करें। help us to stay away from all the false teaching like this and to grow in God in these days in the Spirit. Let's all praise God. आने वाले दिनों में इन सारे गलत शिक्षाओं से दूर रहने के लिए और परमेश्वर में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। आइए हम सब मिलकर तारीफ Praise the करेंगे। Lord, praise the 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 Lord. Fill in the Spirit as much as you like or as you like. जैसे आपको जितना अच्छा आपको लगता है उतना आप आत्मा में भरें। As much as you can fill in the Spirit. No problem. Nobody is going to hinder you. आप जितना अधिक आत्मा में भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं, कोई आपको रुकावट नहीं For God to करेगा। help us in the coming days to live a life full of the anointing. Let's all praise आने God. वाले दिनों में अभिषेक में भर के जीवन बिताने के लिए परमेश्वर सहायता करे। आइए हम सब मिलकर तारीफ Praise the करेंगे। Lord, praise the 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 Lord. The remaining